Hello, good morning, students. 2 days before, I had sent you the notes of chapter Some Basic Concepts of Chemistry to you, and today I am going to explain it to you. Just give your attention and listen to me carefully. इसमें ज़्यादातर चीज़ें वो हैं शुरुआत में जो कि आपने पढ़ी हुई है अपने पिछले क्लासेस में, मगर एक बार फिर भी इसको दोबारा टेकअप करना ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके आपको जो मैंने आपको नोट्स में भेजे हैं वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। एक तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मैटर। तो मैटर आपको पता है अच्छे से, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। एंड मैटर जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी मैटर है, मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल एग्जिस्टेंस, हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम मेटल्स को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दे आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तुमने क्लास 9th में पढ़ा है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, फिर भी एक बार रिवीजन चलेगा। एलिमेंट्स are those pure forms of matter which are made up of same kind of particles. They are the pure form of matter which are made up of same kind of particles, and these particles may be atoms or molecules. ये एटम के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेट पार्ट जो होता है, पार्टिकल होता है, वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होता है। जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स एज H2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज O2, इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स एज ओजोन O3, नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स एज N2। सो ये जो हैलोजेंस भी आप देख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं, मगर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नोबल गैसेस, दे एग्जिस्ट एज एटम्स। जैसे मेटल्स, दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एटम्स। सो दीज आर ऑल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में आपको अच्छे से पता है। मेटल्स के एग्जाम्पल्स भी पता हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम। Similarly, non-metals we are having like carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, noble gases. These are all non-metals. And some such elements are there which lie in the borderline between metals and non-metals. They share the properties of both metals and non-metals. Many examples are there. Of 2 examples I had given you: antimony, arsenic, etc. Now come to compounds. So a compound can be defined as a pure substance. Again, compound is also a pure substance which is made up of atoms of 2 or more different elements, which are made when atoms of different elements combine together in some fixed ratio by mass. Again telling, a compound is a pure substance which is made up of atoms of 2 or more elements which have combined together in a definite ratio, in a fixed ratio by mass. Moreover, compounds cannot be broken down into its constituent elements by physical means. They can only be broken down by chemical methods. All right. Now come to examples. Come to examples like water, H2O, like carbon dioxide, carbon monoxide, potassium permanganate, potassium dichromate, sugar, glucose, nitric acid, sulfuric acid. So many examples are there of compounds. You know them very well. Now come to mixtures.
A mixture is an impure substance which is made by mixing two or more substances in any ratio. It is an impure substance made by mixing two or more substances in any ratio. And the constituents which are present in the mixture, they are called components. Components. Examples of mixture you know very well. Air is a mixture. The various gases present in air, they are called components. Similarly, if you mix sugar and water, make a sugar solution, it is a mixture. Salt solution, this is a mixture. Sugar and salt you mix together, clay and chalk you mix together, that becomes a mixture. So किसी भी दो सब्सटेंस को आप मिक्स करो किसी भी रेशियो में, वो मिक्सचर हो जाता है. अब मिक्सचर के भी अगेन दो टाइप्स हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. A homogeneous mixture is one which have a uniform composition throughout. Uniform composition. Like if you dissolve sugar into water, sugar solution is formed, and that is having a uniform composition, and it is a homogeneous mixture. Salt into water is a homogeneous mixture. Alcohol and water, homogeneous mixture. And heterogeneous mixture, just the reverse of it, that which does not have a uniform composition throughout. Like sand and clay you mix together. सैंड एंड क्ले को जब आप मिक्स करते हो, कहीं पे सैंड ज़्यादा, कहीं पे क्ले ज़्यादा, कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है. तो ये हुआ एग्जाम्पल हेट्रोजेनस मिक्सचर का. एंड components of mixture can be separated. Components of mixture can be separated by physical means, जैसे hand picking, जैसे crystallization, distillation, filtration, etc. ये सब बहुत सारे methods हैं. Now we are coming to the measurement of physical properties. जब भी हम फिजिक्स या केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स लैब में करते हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स में हमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना पड़ता है, जैसे लेंथ या मास या वॉल्यूम या करंट या फिर बहुत सारे प्रेशर वगैरह मेजर करना पड़ता है. तो मेजरमेंट जो होती है, मेजरमेंट में जब भी हम कोई मेजरमेंट एक्सप्रेस करते हैं तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट, दैट इज़ द नंबर, एंड दूसरा होता है यूनिट, किस यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं. सिर्फ नंबर लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ यूनिट लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है. यू हैव टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी in terms of both number as well as the unit. यूनिट्स तुमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी फिज़िक्स में, हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दैट इज़ कॉल्ड SI सिस्टम ऑफ यूनिट. SI सिस्टम में 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये भी आपने पढ़े हुए हैं. ये हैं लेंथ, mass, time, electric current, temperature, amount and luminous intensity. SI unit of length is meter, abbreviated as M. SI unit of mass is kilograms, kg. Time, second, S. Electric current, ampere, A. Temperature is expressed in SI system as Kelvin, K. Then amount of any substance is measured in terms of mole. It is expressed as mole in SI system. Mole, MOL. Luminous intensity, candela, it is CD. So these are the 7 basic units. And फिर derived units भी आते हैं, जैसे acceleration है, velocity है, ये सब इनकी derived units होती है. Acceleration is change in velocity per unit time. So meter per second square. Velocity is meter per second. अब आ जाए हम uncertainty of measurement में. जब भी कोई यूनिट हम एक्सप्रेस कोई लेंथ मेजर करते हैं या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट में हमेशा there is some degree of doubts in the measurement.
जैसे कि मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल से, सपोज करो हम एक लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये 5.1 सेंटीमीटर, एक ने मेजर किया कि ये है 5.4, ये है मान लो इस तरह से करके, मान लो यहाँ पे 5 था। अब इसके बाद जो पॉइंट्स हैं, इसको इसने देखा, एक किसी जिसने भी मेजर किया कि ये 5.4 एग्जैक्टली 4 है, ओके 5.4 लिखा। अब दूसरे ने जब मेजर किया तो उसने पाया कि 5 तो ठीक है, बट ये जो है 4 और 5 के बीच में है, तो उसने लिखा 5.45। तीसरे ने मेजर किया, उसने देखा कि नहीं 5.4 और 5 के बीच में नहीं है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, या 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 से 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो इसने किया 5.451। अब आप बताइए कि ये जो लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है, ये डिजिट हमेशा अनसर्टेन होती है। ये डिपेंड करती है जो भी मेजर कर रहा है उसके स्किल पर और फिर प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। तो ये जो लास्ट डिजिट जो अनसर्टेन है, ये वेरी कर सकता है। अब आप बताइए कि 5.4 में जो है ये डिजिट तो सर्टेन है, ये है अनसर्टेन। अब इसमें 5.45 आया, ये डिजिट, ये जो मेजरमेंट है ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट है, और ये मेजरमेंट इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है, इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस तरह से हम जो एक्यूरेसी जो ये करते हैं, एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि ये आपके जो स्किल है उसका स्किल कितना है, प्रिसीजन उसका मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, और प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस सर्टेनिटी को या फिर किसी मेजरमेंट को एग्जैक्टली एक्सप्रेस करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? इट इज़ द टोटल सम ऑफ all the digits which are certain plus one doubtful digit, means 5.41 में 5.4 तो सर्टेन डिजिट है, और जो लास्ट डिजिट है वो है डाउटफुल डिजिट, अनसर्टेन डिजिट। तो ये टोटल डिजिट सर्टेन प्लस अनसर्टेन डाउटफुल डिजिट, टोटल डिजिट के सम को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको कि इन द मेजर्ड लेंथ ऑफ 8.68 सेंटीमीटर, 8.6 that is the first two digits are certain while the last digit is uncertain, so the total number of significant figures is 3. ना कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के। नंबर 1 रूल है कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर में, दे आर ऑल सिग्निफिकेंट्स। जैसे 5.41, ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो दे आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ज़ीरो को लेके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल है ज़ीरो को लेके कि ज़ीरोज़ इफ़ दे फॉल बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दैट इज़ जैसे कि 504.1, तो 504 तो ये ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है। 30065 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब zeros which are present at the left of the non-zero digit, that is non-significant. Left of non-zero digit,
जैसे 0.56, अब 0.56 किया तो ये ज़ीरो जो है लेफ्ट है 0.56 के, तो ये ज़ीरो केवल इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट को, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता है। 0.0045 has only two significant figures 4 and 5. These zeros are not included in counting the significant figures because they are lying to the left of the non-zero digit. अब है if a number ends in zeros which are to the right of decimal point, then these zeros are significant. If a number ends in zeros which are to the right of decimal point, then they are significant. जैसे 435.0 has 4 significant figures. ये ज़ीरो जो है ये काउंट होगा, 2.00 ये काउंट होगा, दोनों ज़ीरो काउंट होंगे क्योंकि ये ज़्यादा ये एक्यूरेसी को सिग्निफाई करते हैं। नेक्स्ट, if a number ends in zeros which are not to the right of decimal point, then zeros may or may not be significant. If a number ends in zero which are not to the right of decimal point, then these zeros may or may not be significant. तो ऐसे नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को हम n इंटू 10 टू पावर n के रूप में डिनोट करते हैं, जहाँ स्मॉल n जो है ये है एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ, और ये जो कैपिटल N है ये है नंबर हैविंग अ नॉन ज़ीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ऑलराइट, जैसे 0.00052 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के रूप में 5.2 टेन टू पावर -4। अब 5.2 है, यहाँ पे दो नंबर है, दो डिजिट्स है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हुए। वैसे ही 5.20 टेन टू पावर -4 हैज़ 3 significant figures, 5.200 हैज़ 4 significant figures। साइंटिफिक नोटेशन का ये एक एडवांटेज है कि बहुत स्मॉल नंबर और बहुत लार्ज नंबर को हम इस मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे दिस नंबर यू सी, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 8.5 इन 10 पावर 6। सो दिस इज ऑल अबाउट significant figures. Next day we will study about calculations which involve significant figures. Thank you.